Let's write the question. Question is the parallel sides of the trapezium. The parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 13 centimeter. Its non-parallel sides are equal. Its non-parallel sides are equal. Non-parallel sides are equal. Each being 10 centimeter. Find the area of trapezium. Let's first draw the figure. So see, if you understand, this is actually given to you as an isosceles trapezium. So now when you convert this isosceles trapezium into a parallelogram and a triangle, the triangle that will be formed would be an isosceles triangle. ठीक है ना, ट्रायंगल की जो बनेगा आपके पास एक खासियत होगी, ठीक है ना, ये एक जो ट्रायंगल बनेगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द फिगर. The parallel sides of the trapezium are 25 and 13 and its non-parallel sides are equal. Now can I find the area of trapezium now? I'm supposed to first draw a parallel line. So once I draw a parallel line, this becomes a parallelogram. So this becomes automatically 10. So this becomes automatically 13. So this leftover becomes 12 for me. Now I don't need to find out area of triangle, which is an isosceles, using Heron's. I've already told you this. Yes. To find out area of a triangle, I don't need to go for Heron's. Okay? When I know that the triangle is an isosceles triangle. Because what happens in case of isosceles triangle, when you drop a perpendicular that divides it into two triangles of two congruent triangles. Yes. So what can I do in this case is to find out the area of this triangle, I drop a perpendicular. Now this was 10, this is 6. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. कब होता है? आइसोसेलेस के केस में होता है. So if this is 6, 6, this becomes 8 for me. Yes. So now I can say area is directly half. What is sum of the parallel sides? 13 plus 25 into what is the perpendicular distance between them? 8. So this is 4. So 38 into 4. Is it clear? So you'll end up getting 152. क्या ये क्लियर है सबको कैसे निकाला मैंने एरिया? Is it clear? Sir, can you please explain it again? Vanya, what was the difference in the question is the triangle was an isosceles triangle. So whenever an isosceles triangle is there, I drop a perpendicular that divides the opposite sides into two equal halves because we get two congruent triangles. Is it clear? You know this concept or not? Yes, sir. If it's an isosceles triangle, let's say this is equal to this. If you drop a perpendicular, you can say by right angle hypotenuse of triangle, right angle hypotenuse in the side of a triangle, both of these triangles are congruent. So by CPCT, you can say these two are equal. See, ये सब मुझे आपको समझाना था, तो ये मुझे सब चीजें पता है पहले से, इसीलिए मैंने आपको congruence पढ़ाया है. ठीक है ना? Try to understand the purpose of teaching you everything. What I have taught you is everything Yes. for a reason. Yes, sir. है ना? Is it clear? Now Yes. let's take down one more question. This was an easy one. Let's take down a question in which you will not have an isosceles triangle. So let's take this. Now the parallel sides of the trapezium. Again, the parallel sides of a trapezium. देखो ये सब्जेक्ट मैथ्स ऐसा है जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि मैं कौन से जगह पे कौन सी चीज को यूज करूंगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा. मैं चाहता हेरॉन से निकालता लेकिन बहुत टाइम लग जाता और मुझे एरिया निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है.
you get my point? My purpose of solving the area of a trapezium is to get a height by any means. तो हाइट निकालने के लिए आइसोसेलेस में तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और पाइथागोरस से हाइट निकल जाएगी आपकी, सही है ना? चलो, the parallel sides of a trapezium are 20 centimeters and 30 centimeter, and its non-parallel sides are 6 centimeter and 8 centimeter. Find the area of trapezium. चलिए इसका एरिया निकालिए आप. नॉन पैरेलल साइड्स आपके पास 6 और 8 है. अब इस ट्रपेजियम का एरिया बताइए क्या होगा. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. No, sir, wait. No, sir, wait. Sir, 736 centimeters square. 736. Okay. Sir, sorry, 184 centimeters square. Okay. 184. चलिए देखते हैं, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखो अब इस केसेस में आपको हेरॉन्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? Yes, sir. कशिश मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है. कशिश अभी भी, कशिश मेरी स्क्रीन दिख रही है. Let's give name to this. So the parallel sides are 30 and 20 and non-parallel sides are 6 and 8. Okay. So what I'll do is I'll try to make it a parallelogram. So for sure this has to be 6, 6. this has to be 20, and this has to be 10. 10. Okay. Now this is 6, 8 and 10. Yes. Can I find out area of this triangle using herons? So what will be S for me? 12. 10 plus 6 plus 8, that is 24 by 2, that is 12. What would be S minus A? 2. What would be S minus B? 4. What would be S minus C? 6. है ना? So area of triangle would be under root of S, S minus A, S minus B, S minus C. So that would be under root of S is nothing but 12
S minus A is 2, S minus B is 4, S minus C, 24 into 24, 576. है ना? So that will be 24. Yes, 24. area would be 24 centimeter square. Yes. Yes, sir. Now area I know is nothing but half of base into height. So if I drop a height, I don't know what this h is. So I can say this is half of base is nothing but 10 for me. Height I don't know. This will be 5. So height would be 24 by 5, 4.8. But we don't need to find it out actually in terms of decimal. Now my purpose is to get area of trapezium. So what would be the area of trapezium? Half sum of the parallel sides. So that is 30 plus 20 into perpendicular distance between them, that is 24 by 5. So this would be 50. So this would be, let's say 5 to the 10. तो ये 5 हो जाएगा सीधा सीधा. तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा. प्लीज नोट इट डाउन. Yes, sir. Sir, I have a question. यस बेटा, टेल मी. Sir, in this we cannot do like first finding the area of triangle and then finding the area of parallelogram and then you can do that for sure. adding. yes you can do ना. आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए पैरेललोग्राम तो निकाल ही चुके हो. सो लेट्स से ये आपने एक पार्ट का एरिया निकाल लिया है, ठीक है ना. लेट्स से ये एरिया को हम अगर नाम दे दें, हमने A1 तो निकाल ही लिया है, ठीक है. फिर हम क्या कर लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं. अनदर पार्ट ऑफ दिस A2. So what we'll have is A1 A2 sums up to area of trapezium. Yes, you can do that as well. ठीक है. Sir, solve that one time. So what will be this? Again you know base and you know height. इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाइट कितना निकाला अभी आपने? 24 by 5. बेस कितना है? 20. तो A1 कितना आ जाएगा? 20 into 24 by 5. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. 5 4 सा तो 96 आ जाएगा. सही है ना. Yes, sir. और A2 तो अभी आपने निकाला ही था ताज़ा ताज़ा 24. दोनों को ऐड कर दो आप. ठीक है. नथिंग वेरी इजी. यस. Yes. Okay, so this is one part that we have covered. So I think now we have covered for you area of all the quadrilaterals which we have studied till now. सारे quadrilaterals का area हमने cover कर लिया है. अब थोड़े बहुत miscellaneous polynomials के बारे में हम स्टडी करते हैं और उनके एरिया को निकालना सीखते हैं कि अगर पॉलीगन होता है नॉर्मल, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलीगन्स, ठीक है ना, डिफरेंट पॉलीगन्स आर देयर, तो उनका हम एरिया कैसे निकालते हैं. ठीक है ना. अच्छा, so let's take down one more question. So we are talking about, now we'll be discussing miscellaneous polygons. We'll have polygons whose area we need to find out. Polygons का हमें area निकालना होगा, हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं पहले. So let's first find out area of a hexagon. First figure that we are going to study is a regular hexagon. तो उसका एरिया कितना होगा, कैसे निकालोगे? चलो गिव अ ट्राई. मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियरली? Yes, sir. Trying. If I draw a figure, first let's draw a hexagon for us. Hexagon is a 6-sided figure. ठीक है ना, ये रेगुलर हेक्सागन है आपके लिए. और क्या क्या पता है आपको? Sir, यस बेटा. इसमें दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके फिर प्लस रेक्टेंगल का सर 2 ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करके उसको प्लस कर सकते हैं. ओके, विल डू दैट. करो, गिव अ ट्राई. एक बार करके बताओ मुझे कितना आ रहा है. ये एक रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन की खासियत जो होती है मैं बताता हूँ आपको. ये ए बी सी डी ई और एफ है, तो उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी और जो ये एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, है ना. ये तो पता है ना अब आपको. एक्सटीरियर एंगल इज 60, 360 by 6, so interior would be 120. yes, yes or no? देखो लिखो. Exterior angle of a hexagon is 360 by 6, that is 60 degrees. So each interior would be 180 minus 60, that would be 120 degrees. सही है. तो हर एक अंदर का एंगल 120 हो गया. सर लेकिन 120 ढूंढ के क्या मिलेगा?
120 ढूंढ के बहुत कुछ मिलेगा, बट वो सब मुझे ही बताना पड़ेगा। आप लोग क्या लॉजिक लगा पा रहे हो? लेट मी अंडरस्टैंड दैट, कि आप लोग क्या सोच रहे हो क्या होगा। सर 2 ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ओके करो, गिव अ ट्राई। मतलब वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला। You have to give me, let's say this is given to you as A, so what would be the area of a hexagon in terms of A? Is it clear? आपको एक हेक्सागन का लेंथ पता है, साइड का लेंथ बता दिया हेक्सागन का, तो आपको बताना है कि उसका एरिया क्या रहा होगा। So यस बेटा, we can do A plus B into H डू इट। means area of trapezium. हाँ, ओके गिव अ ट्राई। सर यस बेटा, सर base into h of one base into h, if we form a triangle then base into h into side in plus side into diagonal. ओके, बट वुड दैट बी ओनली इन टर्म्स ऑफ ए? No sir, any side, no. एनी साइड नो मीन्स व्हाट? एनी साइड मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं? सारी साइड्स बराबर है, ए है सारी साइड। तो जैसे इक्विलेटरल का कुछ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद है? √3/4 ए हाँ, स्क्वायर, yes. स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर। हम्म, तो ऐसे कुछ ना कुछ इसका बन रहा है क्या? चलिए देखें, लेट्स डू इट। करूं, मैं करूं? Yes sir. चलो आ जाओ, लेट्स डू इट। बाकी बच्चों का क्या है? उत्कर्ष कुछ बोल नहीं रहा है, पंथ कुछ बोल नहीं रहा है, तुम लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? फ्री ऑफ कॉस्ट बोलना है, कोई टैक्स नहीं है यहाँ पे बोलने में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाली है। पंथ यस सर। नाराज हो क्या तुम मुझसे? नहीं सर। हाँ पंथ। उत्कर्ष, Yes sir. उत्कर्ष मेरी आवाज आती है तुमको? क्लियर सुनाई देता है सब? Yes sir. फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, क्या बात है? सर जब तक रिस्पांस देने जाओ तब तो बाकी सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं सर। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सर हाँ मैंने भी ये कर लिया, ऐसा कुछ बता दिया करो एटलीस्ट, तो मेरे को भी पता रहे कि हाँ तुम एक्टिव हो क्लास में। ओके सर। ठीक है ना, सारे बच्चों को एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करना है सर, हाँ मेरे से भी हो गया सर। ठीक है ना, तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि आप लोग सॉल्विंग कर रहे हो। यस चलो सर। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं इस फिगर के अंदर। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करता हूँ, बहुत ध्यान समझना, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? तो अब ये पूरा फिगर एक्चुअली क्या है? सिमेट्रिक फिगर है। पूरा का पूरा जो ये फिगर है, ये पूरा का पूरा फिगर एक सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है? तो जब ये पूरा का पूरा एक सिमेट्रिक फिगर है, तो उस केसेस में मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये जो बनेगा ना, ये वाला जो पार्ट बनेगा इसके साथ, ये भी एक पैरेललोग्राम की तरह बनेगा। ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये खुद में एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये सारे के सारे पार्ट बराबर है। ये पार्ट हो जाए, ये पार्ट हो जाए, ये वाला पार्ट हो जाए, ये पार्ट्स हो जाए, ये पार्ट्स हो जाए, ये पार्ट हो जाए, सारे के सारे पार्ट बराबर है। पूरा का पूरा एक सिमेट्रिक फिगर है।
अब इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी सिमेट्रिकली 60 60 60 60 60 60 60 डिग्रीज, ये भी 60 120 है, दो पार्ट 60 60 में ब्रेक होगा, ये भी 60 60 में ब्रेक होगा, ये भी 60 60 में ब्रेक होगा, सारे एंगल 60 हो जाएंगे, बचे हुए ये एंगल भी सारे 60 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो है क्या, एक तो सेंटर में जो एंगल है वो पूरा 360 है, 6 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60, 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 है ना, तो सारे एंगल 60 हो गए, तो ये सारे के सारे क्या बन गए, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो यू हैव 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपके पास क्या है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यू हैव 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a², इफ यू रिमेंबर, 3/4, yes sir, 4 ये 3√3/4, तो ये वाला बन जाएगा, देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो आप, 2 एंड दिस इज 3, so this is your area of hexagon, regular hexagon, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो कभी ओलंपियाड एग्जामिनेशन में आपको हेक्सागन आ जाता है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इज इट क्लियर? लिख लो इसको। इज इट क्लियर? चले आगे। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन नाउ। चले तो क्वेश्चन लिख ले। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. In a rhombus, if length of one diagonal, ठीक है ना, मेरे हिसाब से मैं खुद ही सोच रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन एक करते हैं, कुछ अच्छा फील हो जाएगा। इन अ rhombus, if length of one diagonal is equal to the side of a triangle, sorry, side of a rhombus, ठीक है। In a rhombus, if length of one diagonal is equal to the side, then find the length of another diagonal. आपको दिया गया है एक रोम्बस के अंदर एक डायगोनल की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है एक साइड के, तो आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है। sir, it will be same as that room, that diagonal only. अच्छा, देखो मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक रोम्बस है मेरे पास जिसकी एक साइड लेंथ ए के बराबर है और एक डायगोनल की लेंथ भी ए के बराबर है। ए के बराबर है, तो सर तो उसकी सारी साइड्स भी ए के बराबर ही होगी। बिल्कुल सारी साइड्स ए के बराबर होगी। और सर अगर इधर ए से हाइपोटेनस से ए से वो ए निकल रहा है, तो उधर भी अगर हाइपोटेनस लेंगे तो ए से वही निकलेगा ना, ए। बट राइट एंगल ट्रायंगल तो हाँ, बन ही नहीं रहा है। हाइपोटेनियस का है। ओके सॉरी।
सर डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है ना रोम्बस में। ऐसे कर सकते हैं, देखो लेट्स गिव अ ट्राई। एक चीज ध्यान से समझो आप, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। हाँ सर 60 66। तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर इंटू 2। सही है। और मुझे ये चीज पता है कि डायगोनल्स 90 पे मिलते हैं रोम्बस के, और एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2। सही है। तो ये हाफ, ये 2, ये 4, ये कट गए आपस में, √3 ए स्क्वायर हो गया d1 d2 के बराबर। अब एक डायगोनल ए के बराबर है और एक d2 मालूम नहीं है आपको, तो d2 कितना हो जाएगा, √3 ए हो जाएगा। लिख लो। सर एक, आप एक सर आप मेथड। एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने जो फॉर्मूला लिखा ना 3a² ब्रैकेट 2 × 1/2 d1 d2, वहां से आपने जो कट करा वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो ये 2 था और ये 2 था, तो ये मिला के 4 हो गया और ये 4 नीचे से कट गया। ठीक है, तो ये √3 ए स्क्वायर हो जाएगा d1 d2। फिर एक d2 मुझे मालूम नहीं है, लेकिन d1 डायगोनल तो मालूम है, वो a के बराबर है, तो a से a कट जाएगा, तो √3 ए d2 के बराबर हो जाएगा। ये एक मेथड ऑफ सॉल्विंग है। दूसरा मेथड ऑफ सॉल्विंग आप कौन सा इनकलकेट कर सकते हो इसके अंदर, लेट्स सी दिस। आपको पता है कि डायगोनल्स 90 पे मिलते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, तो ये a/2 हो जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल में, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर मैं राइट एंगल इसको लेता हूँ और पाइथागोरस लगाता हूँ, तो मुझे ये अननोन मिल जाएगा। दिस इज अननोन फॉर मी। तो मैं बोल सकता हूँ लेट्स से x स्क्वायर इज द अननोन एंड a/2 का स्क्वायर इज नोन, दैट इज गोना गिव मी a स्क्वायर। वी हैव अप्लाइड पाइथागोरस इन दिस। इस वाले में बेटा मैंने पाइथागोरस लगाया। ठीक है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, x² + a²/4 इज a स्क्वायर। So x square is 3a²/4. So x is nothing but √3a/2. अब ये वाला लेंथ x के बराबर है, तो ये भी x होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो डायगोनल पूरा 2x के बराबर हो जाएगा, जो मुझे ढूंढना है। तो 2 × √3/a, so I'll get the answer as √3a। सर a/2 कैसे आया था सबसे पहले? एक डायगोनल आपको a दिया हुआ डायगोनल है, को हाफ ये a दिया हुआ है, कराना। तो उसका आधा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएंगे दोनों। यस सर। सही है। इज इट क्लियर? यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना, फॉलो कर पा रहे हो ना जो जो मैं बता रहा हूँ चीजें? यस सर, कर पा रही। चलो अभी है ना, थोड़े बहुत पॉलीगन्स ले लेते हैं मिसलेनियस और उनका एरिया निकालते हैं। तो ये मैं एक फिगर देता हूँ आपको, सर ऊपर वाला कॉपी करना बाकी है। कर लो। दोनों के दोनों मेथड्स आप कॉपी कर लो। एक आप क्या कर सकते हो, एरिया दोनों का निकाल के ट्राइंगल का, और वो रोम्बस के बराबर प्रूफ करके दोनों एरिया से आप डायगोनल निकाल लो, या पाइथागोरस से डायगोनल निकाल यस सर लिख लिया थोड़ा सा। सर मेरा बाकी है। लिख लो। यस सर, रिटर्न। चले, नाउ लेट्स यस टेक दिस क्वेश्चन। आई विल ड्रॉ अ फिगर फॉर यू। ठीक है ना, इसका पूरे पॉलीगन का आपको एरिया बताना क्या होगा। सो फाइंड द एरिया शोन इन द फिगर। This is 10 meters. This is 5 meters.
This is 2 meters. This is also 2. This is 2 meters. And this is 1 meter. फिगर का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द फिगर. दिस इज सॉलिड फिगर. ये फिगर है आपका जिसका एरिया आपको निकालना है. डॉटेड लाइन सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया है कि किसके कंपैरिजन में लेंथ लिखी हुई है. ठीक है ना. टू टेल दिस एरिया. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. थोड़ी देर बाद. आगे आंसर क्या. लेट्स सी. तो ऊपर जो आपको दिया हुआ है वो एक स्क्वायर दिया हुआ है. इफ यू अंडरस्टैंड, ये एरिया A1 में निकालने वाला हूँ, फिर ट्रापीजियम का A2 में निकालने वाला हूँ, फिर A3 रेक्टेंगल का निकालने वाला हूँ. तो A1 कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 4. 4. A2 कितना आ जाएगा मेरे पास, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. एक 2 है और दूसरी पैरेलल साइड 10 है. ये 10 के बराबर है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. और A3 एक रेक्टेंगल है तो ये 5 इंटू 10 50 आ जाएगा. तो नेट एरिया कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर. यस. आसान सा क्वेश्चन था. सर आपने A3 50 निकाला है ना. हाँ A3 50 निकाला है. बेस इंटू हाइट. यस सर. ओके ठीक है. वन मोर क्वेश्चन आई विल गिव यू. टेक डाउन दिस एज अ होमवर्क फ्रॉम मी. ये मैं फिगर बना रहा हूँ आपके लिए, इसको बना लो आप. इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. एक सेकेंड. This is like this, and like this, and this is 90. This is 10. This is 6. Sorry, ये 6 नहीं है, ये 6 है. This is 6. और ये भी 6 है.
और ये 15 है और ये 20। सही है ना? दिस इज द गिवन फिगर टू यू, फाइंड, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है, ठीक है? सो विल बी डिस्कसिंग दिस नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा। Bye. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. और आपके